ये तो म्यूज़िक तो बराबर है, इसमें माइक में से आवाज़ आना चाहिए बराबर से। हेलो, चेक है, एकदम परफेक्ट है ये वाला। ठीक है चलो, एकदम स्लो कर दो। बीच में एक बार चेक कर लेंगे हम लोग क्या आ रहा है कि नहीं बराबर से। आई डोंट नो वाई ये ना। एको है तो अच्छा, वो थोड़ा कम हो गया है। करके थोड़ा सा साउंड है। नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस इडियट। सेकंड है ना पीछे, प्लेबैक में कुछ ना कुछ तो तकलीफ है ये वाले में। एक बार सेट हो जाए ना ये, तो तुम्हारा काम सेट हो जाए। कैप्चर डिवाइस में तो अपने को डालना नहीं है। अभी ये प्रॉपर एक्चुअली प्रॉपर नहीं होना, नहीं होगा। आवाज़ नहीं आ रहा है बट है। अच्छा, तो माइनर तो बर्दाश्त कर सकते हैं अपन, है ना, तो हेडफोन्स तो लोग सुनते ही हैं। चलो जान दो, अपन अपना ये नहीं करते। वी हैव दिस बैलेंस शीट। क्वेश्चन मेरे पास में देखो ये रहा, अपन यहाँ पे भी बना के रखा है आपके लिए। विच क्वेश्चन विल टेक 6 7 से चालू करें। 5 भी है मेरे पास, 5 आई गेस अपन ने किया था, 5 6 7 करते हैं। द फॉलोइंग इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ विग्नेश लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2019. 12,008% preference shares of rupees 100 each, that is 12 lakh. Equity shares 10 lakhs. Capital reserve 1 lakh. Debenture 5% है, that is 6 lakhs. Interest due on debenture is 1 lakh. And creditors is 3 lakh 60,000. That's an information to you. Goodwill, patents, these are intangible assets. Basically, they are always asking you to write off the intangible assets. Building, machinery, furniture, stock, datas, cash and bank balance. That's my assets, current assets. Discount on issue of debentures and profit loss. These are my fictitious assets, and fictitious asset has to be written off all the time, because that's what is the motive, and the amount is also like comparatively bigger. That's 10 lakh and 60,000. Okay. Note the preference share has not paid the dividend for 3 years. So dividend in arrears is for how many years? 3 years. The following scheme for the reconstruction was prepared and duly approved by the court. मतलब कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है तुम इसको आगे बढ़ सकते हो. So the very first one they're telling me is 8% preference share shall be converted into equal number of 10% preference share of rupees 50 each. If I am not wrong, I am having preference share of 100 each, 12 lakh, and number of preference share is 12,000. Now they are asking us to make it 50. So हम लोग 100 रुपया लेंगे उसके पास and we are gonna give them 50. So what is the profit? The other 50. Correct na? So the entry becomes very simple. That will be 8% preference share capital account debit 12 lakhs to preference share capital, but half of it 50 rupees ना 50 के बदले. That is going to be 6 lakhs and the 6 lakhs in our pocket. Very good. Capital reduction has to be credited because आपको मैंने बताया था कि whenever there is a profit, capital reduction will be credited. Correct है? चलो. I'll simultaneously do the journal entries also. It's a very simple question. I think now it should be. ये आप लोग के लिए अभी सिंपल हो जाना चाहिए. तो लाइन्स पास में कर सकते हैं वैसे. बाजू में अपन वर्क में बना देंगे.
चला, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज एंड लेजर फोलियो. लेजर फोलियो अपने को हर बार लिखना होता है, वो बोले कि ना बोले. सो जर्नल ऑफ द कंपनी, वॉट एवर इट इज. आगे, we are taking preference share capital 8% na, and how much percent preference share we are giving it to him? 10%. वेरी गुड. सो 8% लेके अपन ने सो क्या दिया, लॉलीपॉप दिया. कितने का लॉलीपॉप दिया? 10% का. सो वी आर गेटिंग 8% एंड वी आर गिविंग देम 10%. परफेक्ट ना. चला, so here the entry will be number 1, 8% preference share capital account debit to 10% preference share capital account. I am getting 12 lakh, but I'm giving only, so the remaining 6 lakhs is mine, and that profit is going to go in the, and that will be on the credit side. Narration लिखेंगे being that statement correct है, reduced to 50 rupees and all that nonsense. हाँ, जो भी इंग्लिश आता है अपन पूरा पूरा इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे. दैट्स माई बैलेंसिंग अमाउंट. करेक्ट है. द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एंट्री पे जाएंगे अपन. उसके लिए इसने क्या बोला है? इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू 30 टू बी 3 रुपीज fully paid up. So this becomes very simple. What is the amount of equity share I'm having in the business? It's 10 lakhs. So 10 lakhs लेके कितना देंगे अपन उसको? 3 rupees. That is 3 lakhs. क्या बात है तुम लोग, अरे झकास यार, हम स्मार्ट हो गए तुम लोग. So here it will be equity share capital account debit. To equity share capital account. How much? So what I am keeping with me, and that is correct है. Okay, narration always the next one. 5% debenture shall be converted into equal number of 6% debenture of 75 each. That means I am taking the debenture of 100 रुपये and giving them 75. So if I am not wrong, 6 लाख रुपीज लेंगे हम लोग और उसको 75% देंगे, है ना. ना अभी वो क्लिक हो रहा है अपने को कैसे कर रहा हूँ मैं. तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाई 75%. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा कैलसी मुझे बोलता है 4 लाख 50 देंगे. तो हम लोग अपने पास कितना रखेंगे? 6 लाख माइनस 4 लाख 50. आई एम गेटिंग द आंसर ऑफ वेरी गुड 1,50,000. करेक्ट ना. टू गुड यार. So here it is going to be number 3. Debentures are coming in at what is the percentage of debenture? So I'm taking 5% debenture. How much am I giving? I'm taking 6 lakhs ka. What is the percentage of debenture I'm giving? Lollipop again. Difficulty? Perfect. Narration?
and you're done. चला पुढे नेक्स्ट. डिबेंचर होल्डर ऑल्सो अग्री टू वे व्हाट. सो 50% अगर वो छोड़ रहा है तो कहना इसे वंडरफुल. तो 50 हमारा इनकम हो जाएगा. सो दैट विल मेक कैपिटल रिडक्शन. ओके. एंड द डिबेंचर का इंटरेस्ट का अमाउंट वाज 1 लाख रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इट विल बी अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिबेंचर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट. जो वर्ड बैलेंस शीट में दिया वही वर्ड यूज करेंगे. टू कैपिटल रिडक्शन. डू यू अंडरस्टैंड दिस. सिंपल लग रहा है अभी. अरियर्स फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स. 2 साल से अपन ने उसको दिया नहीं है. वॉज फॉरगॉन मतलब कि उसको छोड़ दिया. 4 साल का नहीं 3 साल का देना था मेरे को इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 3 ईयर्स का देना था. 2 ईयर्स का अपन ने क्या कर दिया फोर गो कर दिया. एंड द बैलेंस ऑफ 1 ईयर शुड बी पेड इमीडिएटली. सो हम लोग पे कितना करने वाले. तो 1 साल का पे करे तो 1 साल का रिकॉर्ड करो. एंड इफ अगर 1 साल का पे करे तो तुम्हारा खर्चा भी 1 साल का होगा. एंड अगर खर्चा 1 साल का हुआ तो लॉस इज डेबिटेड ना. सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड. सो द एंट्री बिकम्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज पैसा जा रहा है ना. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर आपका पैसा जा रहा है सो प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 8%. सो 12 लाख का 8% इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इट 96,000. 8% 96,000. सो कितना पे करूंगा मैं उन लोगों को 96,000. तो लॉस कितना हो गया मेरा 96,000. तो डेबिट कितना करूंगा मैं 96. डू यू अंडरस्टैंड दिस मुन्ना. वो अपन ने रिकॉर्ड ही कहाँ किया था बुक में. हाँ अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया था. बुक में रिकॉर्ड किया तभी तो उसका लायबिलिटी दिखेगा मेरे को. लायबिलिटी दिखा ही नहीं मेरे को. भारी बार निपटा दिया. क्या बोल रहे हैं. 12 लाख के ऊपर आएगा ना. क्यों 12 लाख के ऊपर आएगा. इट्स ऑन द फेस वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स पे नहीं फेस वैल्यू. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. And if I am not wrong it is going to be 90. चला पुढे. now we'll talk about the creditors. What they have to tell me is कि सर मेरे पास में जो creditors हैं ना अभी उन लोग भी जोश में आ गए. They agreed to waive 30% of their claims and accept equity shares for 60,000 in part settlement of their renewed claim. मतलब 30% का तो उन्होंने क्या कर दिया छोड़ दिया. एंड देन बाकी का 70% जितना भी अमाउंट लेना था ना उसका हमने क्या कर दिया. वी आर गिविंग ओनली 60,000. So we'll make a working note for that. Now what is the amount of credit that we have in the question. It is 3,60,000. So what I'm doing is I am making a working note बाजू में. working note number 1. चला total amount is I am making 2 partitions, right. One is 30%. That is 30% is 1,08,000. क्या बात कर रहे हो. अच्छा हाँ वो 6 नहीं है. मैं सिर्फ 6 सोच रहा था. That's my profit and it is going in the capital reduction account. The remaining 70%. चलो बताओ मेरे को. If I am not wrong 3,60,000 का 70% remaining is 2,52,000. इसमें उसने क्या बोला मालूम है कि वी आर गिविंग यू इक्विटी शेयर्स ऑफ. मतलब तुम एक काम करो मेरे पास 600 लेके जाओ. तो कॉमन सेंस क्या बोलता मालूम है. जो रिमाइंडर हो इज वॉट 1,92,000. अरे बाप रे डंडी तुम क्यों आ रहे हो. तुम बताओ.
क्या मजाक मस्ती है इसका? करेक्ट है. सो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1,92,000. अपन देने वाले तो नहीं है. अगर अपन देने वाले हैं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट. सो इन शॉर्ट योर प्रॉफिट इज नॉट हाउ मच, 1,08,000 प्लस. हाउ डिड आई कम टू नो? बिकॉज उसने क्या बोला मालूम है? किधर गया? यहाँ पे इन द पार्ट सेटलमेंट. करेक्ट है. अच्छा, इन पार्ट सेटलमेंट बोला. ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस. Agreed 30 and accept in part settlement of their renewed claims. In part settlement, not full settlement. मतलब कि 1,92,000 हम लोग बाद में पे करेंगे. ऐसा बोला नहीं कि फुल सेटलमेंट है. फुल बोला होता तो अलग बात होती. पार्ट में अपन ने सेटल किया, मतलब कि इतना इतना अमाउंट अपन ने दिया. ठीक है. सो यहाँ पे योर प्रॉफिट विल नॉट बी 1,92,000. दिस आर माई रिमेनिंग डिपेंड. हाँ. यस. दिस विल बी गोइंग इन द बैलेंस शीट एज क्रेडिटर्स. ठीक है. इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ द क्लेम्स. सो एंट्री पास करना पड़ेगा. सो माई क्रेडिटर्स विल बी गोइंग डाउन, है ना. 1,08,000 is my profit and equity is 60. So is it 1,68,000? Sorry. My creditors will be 1,68,000. So here it will be equity share दिया ना उसको. And then correction done. आगे बढ़ते हैं. Yeah, and the credit will be showing the balance sheet at 1,92,000. चलो आगे बढ़े. Okay, so building stock, machinery, debtors and furniture and fictitious asset and the intangible assets and profit loss has to be written off. तो वो रिटर्न ऑफ राइट ऑफ कर देंगे अपन. कोई बात नहीं. करेक्ट है. सो द बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है अपने को क्वेश्चन में? एंड अच्छा ऊपर ही दिया है. ठीक है. तो बिल्डिंग के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट है. तो मैं क्या करता हूँ ना भाई, मैं इधर ही लिख रहा हूँ बिल्डिंग के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट, ताकि मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर सकूँ. करेक्ट है. स्टॉक इज 2 लाख. अच्छा, स्टॉक इज गिवन टू बी 3 lakhs एंड अपने को कर दिया 2 लाख, तो लॉस. प्लांट एंड मशीनरी इज 6 lakhs, अपने को 5 लाख करना है, तो लॉस 1 लाख. डेटर्स इज 1,40,000. रिवैल्यूड इज, तो यहाँ पे लॉस हो गया 10,000. यस और नो. एंड फर्नीचर वॉज इन द बैलेंस शीट एज 2 लाख, वी आर टेकिंग इस, तो अगेन लॉस हो गया. हाउ मच? 40 ना. तो एक ही प्रॉफिट है यार, बाकी सब लॉसेज है. तो एक प्रॉफिट अलग एंट्री पास कर देते हैं, बाकी सब लॉसेज के साथ में एंट्री पास कर लेंगे. चलो. सो व्हाट फर्स्ट बिल्डिंग ना, बिल्डिंग का 1 लाख प्रॉफिट बुक कर लेते. चलो. सो द एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. करेक्ट है. अभी सब के सब लॉस है यार बॉस, तो पहले कैपिटल रिडक्शन को डेबिट में डाल दो. आई डोंट नो व्हाट विल बी द अमाउंट. अभी जितने भी एसेट है मैं सब लाइन से लिखने वाला हूँ.
अच्छा पहले पहले मेरे पास में टैंजिबल इंटैंजिबल है, वो देख ले पहले। दो, एक तो गुडविल है, और क्या क्या है दूसरा? फिर मेरे पास फिक्टिशियस एसेट है, दैट इज वन इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ये तो बैलेंस शीट में देख के मुझे लिखना पड़ेगा ना। 1,20,000, 80, 60 एंड 10। करेक्ट है। नाउ द अदर एसेट्स। स्टॉक, सी स्टॉक, प्लांट, डेटर्स, फर्नीचर। एसेट्स, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, व्हाट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक? इट इज 1 लाख। अच्छा प्लांट भी है, लिखा ना मैंने प्लांट, क्या नहीं लिखा? ओके, 1 लाख, 1 लाख, 10,000 and 40,000। 1 लाख, 1 लाख, 10 and 40,000। 1 लाख ही है। अच्छा मैंने, अच्छा प्रॉफिट लॉस में मैंने अमाउंट रॉन्ग लिखा है। 10 lakhs। अच्छा हाँ 60 एंड इट वॉज 10, सॉरी। ऐसा क्यों? डन है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ विल टेक टोटल ऑफ दिस। क्या आएगा टोटल? Kelsey's 1,20,000, 1,20,000 and 80 is 2 lakh. 2 lakh and 10 is 12. 12 lakh. 13, 14. 14 lakh. 15 lakh 10,000 आ रहा है मेरे को, आपको कितना आ रहा है? परफेक्ट है ना। आगे करेक्ट है। और कुछ है? चलो वो तो कर दिया ना अपन ने, तो खाली कैलसिस पे अपने को इसका आंसर्स निकालना है। अच्छा वी आर नॉट आस्क्ड कैप रिडक्शन अकाउंट ना, तो नहीं बनाएंगे अपन कैप रिडक्शन। नहीं पूछे तो नहीं बनाने का, ज़्यादा पटेली करने का नहीं। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू डायरेक्टली फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैप रिडक्शन? चलो कैलसी लीजिए हाथ में आप लोग, ये रहा माझा कैलसी। क्या करने का मालूम है? वी हैव टू जस्ट सी कि कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। इसमें मुझे मालूम पड़ जाएगा। हैव अ लुक एट दिस ना। वो मुझे क्या बोलता है कि मैं कैपिटल रिडक्शन पहले में 6 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो चलो 6 लाख टाइप करो। सेकेंड में 7 लाख का प्रॉफिट हो तो प्लस 7 लाख टाइप करो। फिर अगेन 1,50,000 का प्रॉफिट हो तो 1,50,000 टाइप करो। सो 14,50,000 हो गया मेरे पास में। अक्रूड इंटरेस्ट में अगेन 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस 50,000। लॉस हो रहा है 96,000 बिकॉज वी आर पेइंग व्हाट? डिविडेंड। 96 है ना यहाँ पे, ये वाला 1000 या 96,000 ऑफ कोर्स। क्रेडिटर्स में अपने को प्रॉफिट हो रहा है 1,08,000 का, तो 1,08,000 प्लस। बिल्डिंग के अंदर अप्रीसिएशन 1 लाख प्लस कर दूंगा। सो आई एम लेफ्ट विथ 16,12,000 का प्रॉफिट, जिसमें से एक साथ में मैंने राइट ऑफ कर दिया 15,10,000। आई एम हैविंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,02,000। जितने भी प्रॉफिट्स थे मैंने प्लस किया, जितने भी लॉसेस थे मैंने माइनस किया। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो लॉस है, पॉजिटिव आता है तो मेरा प्रॉफिट है। यहाँ पे मुझे आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, नहीं समझा? 1,02,000 करेक्ट है। सो प्रॉफिट, यस। सो इसका एंट्री क्या आएगा?
कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. आप एक रिजर्व क्रिएट करते हो ना, दैट्स वाई हम लोग रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो. तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना बोला था आपने? 1 लाख समथिंग समथिंग नहीं होना चाहिए बेटा. 1,02,000. यस. और गुड एंट्री क्या होती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. डू वी अंडरस्टैंड दिस? डायरेक्टली हम लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाए बिना ही ये कैलकुलेट कर लिया. दैट्स वेरी गुड, ऑसम. नाउ वी आर गोना मेक द बैलेंस शीट. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग द बैलेंस शीट. तो ध्यान से देखना. Whenever you make a balance sheet, now you will be having notes to accounts and the normal balance sheet. Now what is notes to accounts? Now I'll tell you. अरे बाप रे, इसका अलग अस्तित्व नहीं है क्या? तुम जहाँ मैं वहाँ, दो जिसमें एक जान है, हमका अलग सिचुएशन है इधर की लाइंस के साथ में. चलो. And that's my notes to accounts. Correct? Balance sheet. We'll take one more page for notes to accounts. I won't be making more notes to accounts because of obvious reasons. The very first reason being Kantala. And second, इसका marks नहीं मिलता. मतलब marks मिलता है, but here they're not checking that do you know how to make the notes to account. If you have any adjustments and all that, तभी बनाने का. Otherwise directly amount लिख सकते हैं हम लोग. I'll make it side by side. थोड़ा स्पेस कम लगेगा अपने को, हालांकि स्पेस बहुत है अपने पास में. ये बैलेंस शीट कंटिन्यूएशन हो जाएगा. वर्टिकल बैलेंस शीट है. एक दो क्वेश्चन किया तो पूरा बैलेंस शीट आ जाएगा. Number 1 is equity and liabilities. The liabilities is now liabilities. उसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड. इसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. उसके लिए हम लोग हमेशा बनाएंगे नंबर 1 ऑलवेज. शेयर कैपिटल के लिए हमेशा बनाएंगे हम लोग का नोट्स टू अकाउंट्स. शेयर कैपिटल. Here is my notes to accounts. Okay. इसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. Can I say I was having equity share capital of 12 lakhs? I had a reduction, right? How much reduction? 50% if I'm not wrong. I am left with 6 lakhs. Again, issued to creditors. नहीं समझा. अरे इक्विटी शेयर था ना 12 लाख का. अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हमें रॉन्ग अमाउंट देखा. तो यू शुड हैव टोल्ड मी कि रॉन्ग अमाउंट है ना ऐसा. हाँ तो मैं जा रहा था तो मैं तो चला जाएगा. अच्छा 7 lakhs नॉट, दैट वाज फॉर प्रेफरेंस. वो पहला एंट्री मैंने किया था तो मेरे दिमाग में वो था. मैं नहीं है तुम्हारा जितना स्मार्ट है. मैं बुढ़ा हो गया यार, अभी क्या करेगा. मैं बुढ़ा नहीं हो गया वैसे मैं. सो दिस विल बी हाउ मच? 10 lakhs ना. ऊपर भी 10 lakhs चेंज करना पड़ेगा. And reduction is 7. So profit is, and I'm having a fresh issue now. मैंने किसको फ्रेश इशू किया था? क्रेडिटर्स को किया था. दैट वाज फॉर 60,000. So now
my equity shares will stand at, do we understand this? Huh, this is my A, equity. I would say 1. कैफ क्लियर है? फिर हम लोग लेंगे 2. 8% प्रेफरेंस है ना? हाउ मच इज दैट? अच्छा अभी आप मिस्टेक मत करना सना, लेस कैप रिडक्शन लेंगे हम लोग. हाँ नाउ 6 lakhs. दिस इज 2. तो अभी कितना हो जाएगा? 9,16,000. पक्की बात है ये? चला. So I'll be writing in the share capital as 9,60,000. परफेक्ट है. चला पुढे. नेक्स्ट मेरे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब इसको ध्यान से बनाना पड़ेगा. रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2. चलो आई विल गो टू द बैलेंस शीट फर्स्ट. लेट मी सी हाउ many reserves we were having. I was having a reserve. Acha, I am already having a capital reserve of 1 lakh in the balance sheet, and I created one more by the way of capital reduction. So there are only two. There are only basically 2. Perfect. So your second. See, if you do not make second one, then also it's okay. Reserves and surplus. Shock it, damn it. Reserve and surplus. We have capital reserve. Capital reserve का opening balance is 1 lakh. And I did create out of capital reduction, and that is going to be 2,02,000. ये बहुत गजब है, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता. करेक्ट है? वी डोंट हैव एनी लॉसेस ना. था अपन राइट ऑफ कर दी. दैट वाज द मोटिव ऑफ द चैप्टर. देन विल टेक लॉन्ग टर्म liabilities. That was mine debenture. Very good. So this is my A and B. Acha, this is my A. Then I'm having long term borrowings. बच्चे यहाँ पे I'll be writing 10% debentures, right? Why 10? 5% हो गया. कन्वर्ट कितने में हो गया वो? हाँ तो हम लोग यहाँ पे 6% लिखेंगे बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी देयर इन द बिजनेस. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 6%. आज जो मेरे पास में ना मेरे को वो लिखना है. अच्छा मैं अभी क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं तुमको बताता हूँ क्योंकि अभी अपने को फटाफट से इसको क्लियर करना है. आई वॉज हैविंग 6% डिबेंचर्स ऑफ 6 lakhs, जिसमें से 1,50,000 का तो प्रॉफिट हो गया. तो आई एम लेफ्ट विथ 4,50,000. तो उतना ही लिखो. एंड नोट्स अकाउंट में क्या करोगे अब? 5% डिबेंचर माइनस डिडक्शन एंड यस 4,50,000 वाला अमाउंट. करेक्ट है? दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? I'll tell the balance sheet for you. Also, this is the only one I'm having. ठीक है? There is no long term provisions ना. कोई provision बोला है आपने को? Long term provisions. I'll write over here if there is any. Nothing. To dash. Next मेरे को क्या दे दिया उसने? Interest and creditors. See, these are my current liabilities. Interest and creditors. So basically what is happening, in the balance sheet, when you make the balance sheet now, so how do you write it? You write it in this way. D, current liabilities and provisions. Then we have trade payables. उसमें आता है creditors and bills payable. That's the system.
ट्रेड पेबल्स में आएगा क्रेडिटर्स. यू रिमेंबर दिस, याद रखना पड़ेगा अपने को. याद रख पाएंगे ना अपन? ओके. सो वी हैव क्रेडिटर्स एज हाउ मच? अरे लवली, बट हम लोग के पास में रिडक्शन हुआ है ना, एंड वो अभी बच कितना गया है? 1,92,000 बच गया था. मेरे को याद है. अलग लेवल पे बेटा. मैं दिखा एक बार फिर भी देख लूंगा ऐसा ऊपर, क्योंकि मैं पटेली वटेली में. हाँ, या लेफ्ट 1 लाख. अच्छा हाँ ना, हाउ आर यू गोना राइट द नोट्स टू अकाउंट्स? यू गोना राइट क्रेडिटर्स माइनस रिडक्शन माइनस इक्विटी शेयर्स. करेक्ट है? डन. लेट्स नॉट गो इन डिटेल. हाँ, फटाफट खत्म करते हैं अभी चैप्टर को, क्वेश्चन को भी. एंड आई एम हैविंग अक्रूड इंटरेस्ट. हाउ मच इज दैट? 50,000, बिकॉज 1 लाख था, अपन ने 50 को राइट ऑफ कर दिया, तो 50 बचा मेरे पास में. अच्छा अभी भी अभी क्या होता है मालूम है कि आफ्टर व्हेन यू डूइंग द क्वेश्चन है तो आधा क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होना चाहिए, आधा क्वेश्चन दिमाग में रह जाना चाहिए. इट्स नॉट, इट डजंट हार्म टू लाइक लुक एंड डू इट, बट यू नो थोड़ा सा अभी अपने को वो आएगा. वो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो आपको बताता है ऐसा. मतलब ये बात बोलने का मतलब सिर्फ था कि तुमको ये बताना कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन है करके. ओके चलो, मैडम इज हियर. नेक्स्ट है मेरे पास में अभी एसेट्स है ना. चलो एसेट्स में अपन ने एसेट्स में रीवैल्यू किया है. सो फिक्स एसेट्स में अपन रीवैल्यू करेंगे. ओके. सो नाउ बिल्डिंग के अंदर हम लोग जो वैल्यू कम करने के बाद में आया ना वो लिखने वाले, दैट इज गोइंग टू बी 7 लाख प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट, एंड देन चलो. सो इसमें टैंजिबल एसेट लिखेंगे हम लोग एसेट्स में. नाउ दिस इज टोटल. नाउ वी डू नॉट हैव एनी अदर. करेक्ट है? देन विल स्टार्ट विद द एसेट्स. नंबर 1 था, अभी इज नंबर 2. एसेट्स में वी हैव नॉन करंट एसेट्स. करेक्ट है? नॉन करंट एसेट्स में वी हैव फिक्स्ड एसेट्स. टैंजिबल में नाउ टैंजिबल एसेट्स में आई एम हैविंग अ लिस्ट, तो उसका अलग से बना देते हैं वर्किंग नोट. आई एम जस्ट मेकिंग इट वन फॉर यू ताकि तुमको याद रहे. नंबर 3 लिस्ट लिख देने का खत्म. वी हैव बिल्डिंग, वी हैव प्लांट एंड मशीनरी, we have furniture, and I guess that's my total of fixed assets. अच्छा, I am valuing building at 7, 7, 5 and 160 है ना. 7 lakh, 5 lakh, and if I am not wrong the total will be 13 lakh 60. and total amount हम लोग को यहाँ पे लिख देना है in the balance sheet over here. Become simple. Intangible asset, I'm not writing anything over here. I do not have any investment. Do I have any investment? चेक कर लेते हैं ना अपन एक बार. डजंट हार्म्स टू चेक ना. नहीं है अपने को, खुश है मैं. नेक्स्ट है मेरे पास में स्टॉक एंड डेटर्स. वो हमारा करंट एसेट्स है. आई एम नॉट मिसिंग एनी फिक्स एसेट ना. तो स्टॉक, डेटर्स एंड कैश एंड बैंक बैलेंस है. अच्छा अभी कैश बैलेंस में थोड़ा अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा. सो ये तो हो गया. देन मेरे पास है अपने पास में नहीं है तो मत बनाओ. आप लिखने के बाद में बोलो वहाँ पे डैश. दैट आल्सो इज ओके. यू राइट इंटेंजिबल एसेट्स, you write your intangible assets, and then afterwards you put a dash. That is also okay. Yeah, it's not there na, and this is not the company accounts ka actual question whereby they're asking, they're expecting you to show that it is there, but it is not there in the question. That's why I'm not writing it. So that's okay. So इसमें आएगा इन्वेंट्री. स्टॉक जो होता है ना बेटा, क्या होता है इन्वेंट्री. ये इन लोग पढ़े लिखे लोग को इंग्लिश बहुत आती है, तो इन लोग क्या बोलते हैं स्टॉक. नहीं, हम नहीं स्टॉक बोलेंगे, हम बोलेंगे इन्वेंटरी. चोचले हैं इनके. व्हाट इज स्टॉक अमाउंट इन द क्वेश्चन? 8 लाख है ना. बट हाउ मच आर वी वैल्यूइंग इट एट?
वी आर वैल्यूइंग द स्टॉक एट, तुम लोग क्या लेंगे 2 लाख एंड डेटर्स को 1,40,000 ले लेंगे. डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स. सो डेटर्स को डेटर्स नहीं बोलेगा, क्या बोलने का, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,00,000. करेक्ट है, परफेक्ट. एंड द कैश एंड कैश बैलेंस, कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस. तो कभी भी कैश आएगा तो कैश नहीं बोलने का ना मुन्ना, क्या बोलने का, कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस. उसका नाटक है उनका, कुछ और दूसरा है नहीं. बोल सकते हैं बट अपन उसको ऐसा नहीं बोलेंगे, हम लोग उसको बोलेंगे कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस. इसके लिए डेफिनेटली आई विल बी showing you the working notes to accounts. देखो मैं notes to account लिख रहा हूँ. इसमें हम लोग लिखेंगे कैश बैलेंस, the opening balance that I was having, if I am not wrong, it is 2,50,000. I have made some payments in the question. तो अपने को फाइन करने जर्नल पे जाना पड़ेगा. कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे पेमेंट किया है, पेमेंट 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 नहीं, पेमेंट हाँ 96,000 का प्रेफरेंस ड्यूटी को पेमेंट किया था ना. सो मेड अ पेमेंट टू 96,000. हाँ एनी अदर पेमेंट, मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ पेमेंट दूसरा नहीं किया है. करेक्ट ना ब्रो. सो आई विल बी लेफ्ट 2,50,000 माइनस 96,000. हाउ मच इज दैट. मेरे को आ रहा है 1,54,000. परफेक्ट हो तुम यार एकदम. इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो सर, कैलसी वाला. ओ स्मार्ट. एंड देन यू आर डन. आई गेस मुझे नोट्स अकाउंट बाजू में बना देते तो भी चलता. माई टोटल शुड टैली. यहाँ पे आएगा प्लस 1,40,000 प्लस 2,00,000 and plus 13,60,000. So my balance sheet should tally at 18,54,000. करेक्ट ना. ये देखते ये आ रहा है कि नहीं. सो 9,60,000 प्लस 2,02,000 प्लस 4,50,000 प्लस 1,90,000 प्लस 50,000. Yes, it is starting at 18,54,000. Perfect है ना. And that's a done deal. Your balance sheet does tally. अच्छा, मैं आप लोग को लिखना होगा ये चीज़. मैं एकदम स्लोली आगे मैं इसको बढ़ाता हूँ. आप क्या करो, जैसे ये आएगा ना तो आप पॉज कर दो एंड लिख लो. फिर मैं आगे थोड़ा करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, फिर से पॉज करो, लिख लो. हाँ वो भी कर लेते हैं हम लोग फॉर देम. पॉज किया, लिख लो. पॉज किया, लिख लो. अच्छा ये ठीक है, टोटल हो भैया जो भी अमाउंट है लिख लेना इसको. एंड देन दिस इज योर बैलेंस शीट, छोटू सा. ठीक है, दिस इज योर वर्किंग नोट फॉर क्रेडिटर्स. एक ही छोटू सा वर्किंग नोट था. दिस इज द वर्किंग नोट, लिख लो. एंड द नोट्स टू अकाउंट्स एट वन पेज ओनली. आई गेस दैट इज डन नाउ. थैंक यू. चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.